हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका खंडवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका खंडवाल। द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। स्पेशली अगर आप कोर्ट का एग्जाम दे रहे हैं या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मोटिवेट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो जो अभी एक सीरीज है, देर आर टू सीरीज विच आई एम गोइंग टू लॉन्च इन दिस चैनल, which is one is for EMRS, KBS and NVS PGT and TGT कंप्यूटर साइंस, एक ये है। और दूसरा है जो EMRS का JSA का Tier 2 है। उसमें ऑल द आई चेक द सिलेबस, ऑल द सिलेबस इज अबाउट योर कंप्यूटर। तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपके इस पर्टिकुलर चैनल में आई विल क्रिएट अ प्लेलिस्ट एंड द प्लेलिस्ट विल बी अपडेटेड विथ न्यू सेशंस। तो इसमें हम लोगों के साथ एमसीक्यूज, 40 एमसीक्यूज के साथ 15 हमारे डिस्क्रिप्टिव भी है। तो फिर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। सो पूरी तैयारी कराई जाएगी कि आंसर को कैसे प्रेजेंट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, इन द एग्जाम यू गेट अ क्वेश्चन लाइक एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूआरएल। अब वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यूआरएल, फर्स्ट यू विल राइट URL stands for Uniform Resource Locator. It is also known as URI, Uniform Resource Identifier. अब हम लोग एक एग्जाम्पल देंगे, एक यूआरएल का एग्जाम्पल देंगे, फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को समझाएंगे। दैट देर आर 4 पार्ट्स एसोसिएटेड विद द यूआरएल। And the first part is your scheme, and scheme identifies the protocol, host क्या होता है, domain क्या होता है, और path क्या होता है। So with the help of that URL we'll be able to explain the different paths which is associated with URL। तो ऐसे ही MCQs, तो it is very easy। तो MCQs के पहले पहले सेशंस आएंगे और बाद में सेशंस आएंगे फॉर योर डिस्क्रिप्टिव पेपर प्रिपरेशन। सो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो डेफिनेटली like, share and subscribe. That is the thing. There is no fee right now. As of now, I'm not creating a series and then you need not pay for it. So that is it. So let us get started for the first session of EMRS JSA. So let us get started. Already there are lots of sessions. अगर आपको practice करने हैं तो बहुत सारे sessions already computer section पे हैं। But specifically इसी post के लिए according to the syllabus I will be posting the sessions. So let us get started. So, most important, the name of the channel is Study with Alka Kandwal. So, that is the channel. So, let us first start. The questions which I have taken for the first session is for from this easy to moderate level के questions है. So, let us get started. Which unit of computer performs arithmetic and logical operations? So, because computer fundamentals is also there, तो option C इसका correct answer होगा, arithmetic and logic unit. Okay. Now, let's move ahead. Okay, wait. Okay. So this is the first. Okay. Now, which of the following is not an input device? So, not an input device, तो scanner तो input device है। तो ये scanner is an input device, light pen भी input device है, plotter हमारा output device है। So, option C होगा इसका answer. Option C is the correct answer to this question. So yes, answer is option C. Oh, sorry, that is question number 2. Na? Option C होगा इसमें. So let's move ahead. Okay. The brain of the computer is known as the CPU. So what is the brain of the computer known as? The brain of the computer is known as the CPU. So yes, option B is the correct answer to the question. Moving ahead, 1 kilobyte is equal to how many bytes? So it is equal to 1024 bytes. Okay, 2 to the power of 10 भी आ सकता है. So yes, 1 kilobyte is equal to 2 to the power of 10 bytes. ठीक है. फिर 1 megabyte is equal to 2 to the power of 10 kilobyte. 1 gigabyte is equal to 2 to the power of 10 megabyte.
तो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, तो ये सीक्वेंस है जो कि हर एक मेमोरी पहले वाले से रिलेटेड है और 2 to the power of 10 ही है। विच मेमोरी इज वॉलेटाइल इन नेचर, तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि रैम इज वॉलेटाइल इन नेचर, मगर रैम तो इस ऑप्शन में है ही नहीं। तो यस, रोम तो वॉलेटाइल नहीं है, इट इज नॉन वॉलेटाइल। कैश, कैश हमारा, कैश मेमोरी हमारा नॉन वॉलेटाइल है, बिकॉज एज सुन एज द पावर गोज ऑफ द डेटा फ्रॉम द कैश मेमोरी गेट्स रिमूव्ड। सो यस, द आंसर टू द क्वेश्चन इज कैश। विच सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू रन अ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब I will take a session wherein I am taking the entire explanation about operating system, उसके functions क्या होते हैं। ठीक है, तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, और हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं। ओके, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये सब हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। Okay, so yes, the answer is C. Which of the following is a secondary storage device? Secondary storage device for the permanent storage of the memory. तो इन सब में हमारा हार्ड डिस्क है जो कि सेकेंडरी स्टोरेज है, रैम रोम प्राइमरी है। Yes, and cache, it is a high speed memory which stores the frequently stored instruction. बायस कहाँ स्टोर्ड होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इट इज स्टोर्ड इन द रोम। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। What is the primary function of an operating system? The primary function of the operating system is to manage the hardware and the software. ठीक है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट कैसा होता है, और हमारा डेडलॉक कैसे अवॉइड होता है, तो उसके क्या एल्गोरिदम्स अवेलेबल है, मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट केस क्या होता है, बेस्ट फिट क्या होता है, वर्स्ट फिट क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों के डिस्क्रिप्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आई विल मेक नोट्स ऑन दैट एज वेल। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स है? तो विंडोज तो प्रोप्रीटरी है, मैक ओएस भी नहीं है, लिनक्स जो है हमारा वो हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉइड भी ओपन सोर्स है, पाइथन भी हमारा ओपन सोर्स है। Which operating system allows multiple users to work simultaneously? So option C is the correct answer, multiple user operating system. What does booting refer to? Booting refers to uh, loading the operating system into the memory. Option C is का correct answer होगा। Okay, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट तो होता है, फाइल मैनेजमेंट भी होता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग भी होता है, तो वायरस स्कैनिंग नहीं होता है, वो तो एंटीवायरस का काम है। तो यस, दैट इज द करेक्ट आंसर। विच विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा फाइल सिस्टम यूज होता है? तो ये है हमारा ऑप्शन बी, द NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। Okay. Which MS Word feature checks spelling and grammar? Spelling और grammar के लिए option C, that is proofing is required. MS Word का पूरा shortcuts and other important points will also be coming. So yes, we have to prepare accordingly. What is the default extension of MS Word? It is .docx. Okay, that is the correct answer. Which function calculates the average in Excel? So option D is the correct answer, is equal to average. So yes, in Excel, a cell address consists of a row and a column. जैसे C1 मैंने cell address बोला, तो C is the column name and 1 is the row number. So yes, it has both row and columns. Yes. Which PowerPoint view is used for slide animation? So yes, slide show is used for slide animation. Header and footer option is found in which tab of Microsoft Word? It is in the insert option. So option B is the correct answer. Which Excel features filters the data? तो obviously filter एक option होता है to filter the data. मेल मर्ज क्यों यूज होता है? जब हमको बल्क लेटर्स भेजने हैं तब हमारा मेल मर्ज का कॉन्सेप्ट यूज होता है। व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर कॉपी? कंट्रोल+C। और हमारा ये क्या है? एक्स, कंट्रोल+X कट के लिए है, कंट्रोल+V पेस्ट के लिए है, कंट्रोल+Z अनडू के लिए है, Control+Z is for undo. Shortcut to lock the windows is Win keys plus L. Option C is the correct answer. कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप क्यों यूज होता है? टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू फाइंड? कंट्रोल+F। कंट्रोल+H होता है रिप्लेस के लिए।
ओके, एंड ये दोनों क्यों यूज होता है, दैट यू विल फाइंड इट आउट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. यस. What is the use of Alt plus Tab? Alt plus Tab यूज होता है स्विच एप्लीकेशंस करने के लिए, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है. लैन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क. ओके, लोकल एरिया नेटवर्क. WAN मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, MAN मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और PAN मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क. What is the device which is used to connect two different networks? Option C is the router. What is the protocol which is generally used for web browsing? The answer is option C, that is Hypertext Transfer Protocol. POP generally email retrieval या receive करने के लिए यूज होता है. SMTP send करने के लिए यूज होता है, send email. और FTP फॉर फाइल ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल्स के लिए. आईपी कौन सा एड्रेस वर्जन जिसमें 128 बिट्स है, तो वर्जन 6 में. ठीक है, 164 दिस वर्जन 6 में हमारा 128 बिट्स, सो 128 बिट्स इज देयर इन version 6. So you need to remember, and there are two versions, version 4 and version 6. ठीक है, so version 4 is 32 bits, so that also you need to remember. Malware that demands the ransom, that is ransomware. द क्वेश्चन में ही आंसर था. फिशिंग जनरली किससे रिलेटेड है? हमने बार बार साइबर क्राइम में सुनते हैं फिशिंग फिशिंग फिशिंग, सो दैट इज जनरली फ्रॉड ईमेल्स जो रिसीव होते हैं. फायरवॉल किस लिए यूज होता है? ऑब्वियसली वो सिक्योरिटी फीचर के लिए यूज होता है, और अनऑथराइज एक्सेस को बचाने के लिए हमारा फायरवॉल यूज होता है. What is the full form of URL? Uniform Resource Locator. Option A is the correct answer. Uniform URI आ गया तो Uniform Resource Identifier. www was invented by Tim Berners-Lee. So option B is the correct answer. What is the secure version of HTTP? The secure version of HTTP is HTTPS. It sends the data in the encrypted form, not in the plain form. So it sends the data in the encrypted form, and it operates over the transport layer. ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर. और जो इनक्रिप्टेड डेटा है उसको बोलते हैं साइफर टेक्स्ट. Okay, so these are the terms which you need to remember. Strong password should contain mix of characters. Obviously, not only alphabets, not only numbers, it should be a mix of characters. Which is not a browser. Chrome तो ब्राउजर है, Firefox भी ब्राउजर है, Edge भी ब्राउजर है. Firefox एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है, और बाकी Yahoo हमारा एक सर्च इंजन है. So yes, the correct answer is option C. Cookies store what? Cookies generally stores the user preferences. OTP का फुल फॉर्म क्या है? वन टाइम पासवर्ड. क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? गूगल ड्राइव. ये सब तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है. गूगल ड्राइव हमारा क्लाउड स्टोरेज है. साइबर बुलिंग happens through emails only, social media. Generally, it happens through the social media. Downloading files from the internet is done by, ओके, इट इज नॉट फ्रॉम द ईमेल. ठीक है, तो डाउनलोडिंग फाइल्स इट शुड बी FTP. अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग ऑफ फाइल इट इज योर FTP. सो POP तो डाउनलोडिंग ईमेल्स होता. ठीक है. एंटीवायरस क्यों यूज होता है? टू प्रोटेक्ट द डेटा ऑब्वियसली. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. जैसे रिलायंस है, एयरटेल है, जो हमको इंटरनेट प्रोवाइड करता है मंथली फी लेकर. सो दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. स्पैम रिफर्स टू व्हाट? द जंक ईमेल्स जो हम रिसीव करते हैं, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट. विच टेक्नोलॉजी इनेबल्स द ऑनलाइन मीटिंग? सो ये टेक्नोलॉजी है VoIP, दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. इंटरनेट प्रोटोकॉल. टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या करता है? सिक्योरिटी को बढ़ाता है. सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है. तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस, एंड दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे ही बहुत सारे सेशंस आएंगे, एंड इफ यू वांट टू डू ग्रेट इन योर टियर 2, एंड सो जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल से जुड़ जाओ, और देर विल बी लॉट्स ऑफ सजेशंस फॉर योर डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑल्सो. So all the best and stay tuned. God bless you all. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel.